Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of heredity because evolution chapter is no more in our syllabus. In previous video lecture, you have learned the basic concepts of the principle of inheritance and variation, that is basic acknowledgement of principle of inheritance and variation, that is chapter 5. As you all know, there are two portions of heredity, the chapter 5 principle of inheritance and variation, and chapter 6 the molecular basis of inheritance. In previous video lecture I have begun the chapter 5 principle of inheritance and variation, in which you have learned the different concepts regarding the principle and the concepts of heredity and variation. Also you have learned the different kinds of traits, that is acquired traits, inherited traits, and many other kinds of traits that may possible to deliver from parents to their offspring, and also the offspring gain in their lifespan. In this video lecture you will learn the different other terminology, because early 3 video I have promised you, early 3 to 4 video is related to the basic terminology of heredity, and later I will begin the overall chapter, and among the chapter if the terminology and the related concept has come, then I will aware you that I have introduced the terminology earlier in part 4, part 1, part 3 video. So let we continue the different terminology related to the lesson that I have left in previous video lecture. Now the chapter is begin. In previous video lecture the chapter is actually begin, and in the previous video you have learned the different concepts of the parents, offspring, traits, acquired and inherited traits. In this video lecture you will learn the heredity, inheritance, variation and many more. So all about the concept regarding the parents, offspring, traits, acquired traits, inherited traits is actually over in previous video lecture. Now back to the heredity, the concepts regarding heredity. अब इस पे हम लोग फोकस करेंगे हेरिडिटी क्या होता है. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सपोज दैट ये कोई आदमी है. ठीक है, ये कैसा है दिखने में, कैसा दिख रहा है, ये दिखने में लग रहा है टाल, रेड, और ये है क्या, ह्यूमन बीइंग. क्लियर है ना, ये टाल है, रेड है, ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, इससे इसके जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ठीक है, इससे इसके जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे मैं ऑफस्प्रिंग दिखा दे रहा हूँ, इससे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं. ठीक है, और इस ऑफस्प्रिंग में भी वही प्रॉपर्टी है जो इसके पेरेंट्स में है. ठीक है, वो भी क्या है, वो भी टाल है, रेड है और दिखने में ह्यूमन बीइंग लग रहा है, तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें तुमको फोकस करने हैं, जिसपे तुमको समझना है और उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहना है. फॉर एग्जाम्पल, इस पेरेंट्स के अंदर ऐसी कौन सी खास बात थी जिसने इस ऑफस्प्रिंग को अपने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करा दिया. ठीक है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि पेरेंट्स के अंदर कुछ क्या थी, प्रॉपर्टी थी. पेरेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टीज़ थी जिस प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये अपने सभी कैरेक्टर्स को, अपने सभी ट्रेट्स को, मैंने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में ट्रेट्स के कॉन्सेप्ट को बताया था, सभी ट्रेट्स को क्या कर लिया, अपने गैमीट्स में कॉपी कर लिया. किस में कॉपी किया, गैमीट्स में. गैमीट्स क्या होता है, स्पर्म होता है और ओवा होता है. ठीक है, बस एक बात जान लो कि ये प्रॉपर्टी कभी कभी मिस हो जाती है, कभी कभी ये प्रॉपर्टीज फेल हो जाती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर रहे, प्रॉपर्टी क्या है, कॉपी, ट्रेट्स को कॉपी करने की प्रॉपर्टी, और उसको कॉपी ही करने की प्रॉपर्टी नहीं, उसको अगले जनरेशन में ले जाके रिलीज करने की प्रॉपर्टी. देखो अब ये इसके पास ये प्रॉपर्टी थी कि अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टाल, रेड, ह्यूमन बीइंग का नेचर, ये अगले जनरेशन में टाल, रेड, ह्यूमन बीइंग के नेचर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये प्रॉपर्टी जो है जिसकी वजह से कोई लिविंग बीइंग अपने ट्रैट्स को नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड कर पाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेरिडिटी. सो अब हेरिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग लिखते जाइए. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग by which they able to transfer the genetic traits
to the offspring. Properties of living being by which they able to transfer the genetic traits to द ऑफस्प्रिंग. जेनेटिक ट्रेट्स क्या होते हैं भाई? ऐसे ट्रेट्स, मैंने बताया था कि सभी तरह के ट्रेट्स जाते भी नहीं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. कुछ ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग खुद अपने लाइफ स्पेन में गेन करता है, ठीक है, हम उसको छोड़ दें तो बाकी ट्रेट्स जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसको जेनेटिक ट्रेट्स बोलते हैं. क्लियर है ना? आई होप आपने डिफिनीशन हेरिडिटी का लिख लिया होगा. ठीक है, हेरिडिटी का जो डिफिनीशन है उसको आपने लिख लिया होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. क्लियर है सबको? चलो आते हैं नेक्स्ट. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे अर्ली शुरुआत में क्या रहा होगा? मंकी रहा होगा, ठीक है, उससे कोई मंकी बना होगा. ठीक, फिर मंकी के जनरेशन में कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई बहुत बुद्धिमान मंकी हुआ होगा जिसको हम नाम दे दिए चिंपैंजी. और ऐसा नहीं है कि वो उसी जनरेशन में चिंपैंजी हुआ होगा, नहीं, मंकी भी हुए होंगे, मंकी भी हुए होंगे. ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से जनरेशन चेंज हो गया उसको हम बोलेंगे वेरिएशन. सो वेरिएशन क्या? एक्चुअली डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अमॉन्ग द प्रोजेनी दैट इज नॉट डिफर फ्रॉम द, दैट इज नॉट सिमिलर विद द पेरेंट्स. तो यहाँ पे मंकी जब तक मंकी बना रहा है तब तक तो हमको क्या लग रहा है कि इसके पास ये प्रॉपर्टी है जो सक्सेसफुली जो है अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जा रहा है. फिर ये ऑफस्प्रिंग जो है अगले जनरेशन में भी वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो. इस प्रॉपर्टी यानी कि ये प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई लिविंग बीइंग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दे उसको बोलते हैं हेरिडिटी. लेकिन कोई ऑफस्प्रिंग कोई पेरेंट्स अगले जनरेशन में अपने ट्रेट्स को, जैसे मान लो कि ये ट्रेट्स है, ट्रेट्स को अगले जनरेशन में अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसके पीछे कुछ प्रोसेस भी होंगे. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इनहेरिटेंस. तो ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में बहुत डिफरेंस नहीं है. हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है एक प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस क्या है? एक प्रोसेस है. जैसे मान लो कि ये कोई आदमी है, ठीक है, इसको हम सेक्रेटरी बना दिए अपनी कंपनी का, ठीक है, और इसको मैं बोला कि तुमको अपने एम्प्लॉय को 500 डेली जो है, सारे एम्प्लॉय को 500 रुपये डेली देना है. तो ये क्या किया कि 450 रुपये दिया और 50 रुपये अपने पास रख लिया. 450 रुपये दिया और 50 रुपये अपने पास रख लिया. यानी कि तुम कहोगे कि ये इसका प्रॉपर्टी है. बेईमानी यानी कि डिसऑनेस्ट, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये क्या किया, 50 रुपये अपने पास रख लिया. लेकिन ये किस प्रोसेस के थ्रू, माने कैसे, चेक से या फिर कैश, ठीक है, या फिर मोबाइल के थ्रू, ठीक है, यूपीआई के थ्रू इसको दिया. तो इसमें दो टर्म हो गए कि कैसे दिया ये पैसा 450 रुपये, और दूसरा कि 50 रुपये क्यों रख लिया. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी पर्सन, चाहे वो बेईमान हो चाहे ईमानदार हो, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो पैसा कितना रख रहा है. ठीक है, तो ये 50 रुपये अपने पास रख लिया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये इसका गुण होगा, ये सीखा होगा कहीं से चोरी करना, तो इसकी प्रॉपर्टी है. लेकिन ये दो काम कर रहा है, एक तो पैसा रख रहा है, दूसरे पैसा दे भी तो रहा है. तो ये प्रोसेस हो गया कैसे दे रहा है, और दूसरा ये कितना दे रहा है 450 रुपये, ये इसका एक प्रॉपर्टी है. सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो टाल हो, चाहे वो ड्वार्फ हो, चाहे वो शॉर्ट ब्लैक हो, चाहे वो ब्लू हो, कोई भी लिविंग बीइंग अगर अपनी प्रॉपर्टी को, अपने ट्रेट्स को अगले ऑफस्प्रिंग में रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. ट्रेट्स को रिलीज करने की प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी अगर मिस कर गई, ये प्रॉपर्टी अगर गायब हो गई इसमें, तो ये ट्रेट्स अगले जनरेशन में फॉरवर्ड नहीं होगा. जैसे टाल है और टालनेस की प्रॉपर्टी ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, तो ये बोलेंगे कि ये हेरिडिटी की प्रॉपर्टी लॉस कर गया और फेल ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होगी? फेल. और जब हेरिडिटी फेल हो गई तो क्या होता है? वेरिएशन. अब दूसरी चीज़ है कि किस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं
जिसके थ्रू कोई ट्रैट्स एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफर हो सकता है, रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इनहेरिटेंस। क्लियर है ना? सो इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग एबल टू ट्रांसफर द जेनेटिक ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग एबल टू ट्रांसफर द जेनेटिक ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग बीइंग जो है अपने ट्रेट्स को अगले जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो प्रोसेस अगर लगा देंगे तो हो जाएगा क्या? इनहेरिटेंस। और अगर प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो हेरिडिटी। इससे रिलेटेड चैनल्स पे एक वीडियो पड़ा होगा। ठीक है, 10th से रिलेटेड है वो, क्लास 10 से रिलेटेड है, बट आप उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो के साथ उसका भी लिंक भेज दूंगा, वो बोर्ड पे मैंने बताया है। हालांकि उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन चाहे बोर्ड पे पढ़ाएं, चाहे आपको ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएं, कोई वो नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए और उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ट्रैट्स और ट्रैट्स क्लियर हो गया। पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग, ट्रैट्स, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। वेरिएशन को भी डिफाइन कर लीजिए। तो अभी हम पहले आपको हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ताकि आप उसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज बाय विच properties by which the living being able to transfer the genetic traits in next generation, able to transfer properties by which the living being able to transfer the genetic traits in next generation called heredity। अब इस प्रॉपर्टी की जगह पे क्या लगा देंगे? प्रोसेस। क्या हो जाएगा? हेरिडिटी। ठीक है, वेरिएशन। वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? लिख लो, डिफाइन कर लो। वेरिएशन, इट डिफाइंड एज डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस एमोंग प्रोजिनी। ठीक है, तो ये तो हो गया हेरिडिटी का, इनहेरिटेंस का। ठीक है, और ये क्या हो गया? वेरिएशन का एग्जाम्पल। और वेरिएशन के एग्जाम्पल में, वेरिएशन का डिफिनीशन हो गया। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? मंकी। ठीक है, मंकी। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे? चिंपैंजी। फिर क्या लिखेंगे? ऐप। अब यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लिखने हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन। ये वेरिएशन 2 है, ये वेरिएशन 1 है। यानी वेरिएशन हमेशा किस में होता है? वेरिएशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, उसी में ही होता है। और इसको, ठीक है, इसको जो है दो वे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेरिएशन के लिए कंडीशन क्या है? इसको दो वे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग। क्यों भाई? सपोज दैट ये कोई ऑफस्प्रिंग, ये कोई इंडिविजुअल है जो कैसा है? ये ब्लू है और राउंड है।
इसके ऑफस्प्रिंग, ये अकेला है, सिंगल पेरेंट है, अकेला है, और इसके ऑफस्प्रिंग भी बिल्कुल ब्लू होंगे और क्या होंगे, राउंड होंगे। रीजन क्या है कि इसमें किसी भी ट्रेड्स का, किसी भी जीन्स का ब्लेंडिंग नहीं हुआ, मिक्सचर नहीं हुआ, ठीक है। और ये मिक्सअप जब नहीं हुआ तो अगले जनरेशन में एब्सोल्युटली ब्लू होंगे और राउंड होंगे। यानी कि जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी कंडीशन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सपोज दैट एक पेरेंट्स यहाँ इन्वॉल्व हो गया, इसके साथ एसोसिएट हो गया, तो अगले जनरेशन में उसकी भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की खास बात होती है, वेरिएशन होता है, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है वेरिएशन का, दूसरा जो पॉइंट्स हैं वेरिएशन से रिलेटेड उसमें लिखेंगे, इट इज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ, इट इज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस फेल हुआ तो एग्जाम में पूछता तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड इफ इनहेरिटेंस गेट फेल्ड, तो इसको बोलेंगे वेरिएशन, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की थियरी क्या है, ये हम समझेंगे इसको जब डिटेल क्लास शुरू होगा, ठीक है। डिटेल क्लास क्या, जब आगे हम पढ़ते जाएंगे लॉज वगैरह मेंडल का पढ़ेंगे तो ये एकदम से क्लियर हो जाएगा वेरिएशन, ठीक है। तो ये जो है ईच टाइम जब भी वेरिएशन होगा, ईच टाइम ड्यू टू फेल्यूर ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन, each time during the failure of heredity or inheritance there will be the cause of variation. So variation causes the phenotypic abnormalities in next generation, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि हेरिडिटी का डिफिनीशन लिख देना है, इनहेरिटेंस का डिफिनीशन और वेरिएशन का। वेरिएशन में क्या लिखेंगे, मंकी लिखेंगे, मंकी के बाद फिर मंकी लिखेंगे और उसके बाद जो है चिंपैंजी लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन, ठीक है। हेरिडिटी में क्या लिखेंगे, मंकी मंकी लिखते जाएंगे और नीचे लिखेंगे प्रॉपर्टीज इक्वल टू हेरिडिटी, प्रोसेस इज इक्वल टू वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिएशन इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना स्पेसिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। ध्यान से सुने, देखो मंकी से जब तक मंकी बनता रहा तब तक तो एक काम होता रहा कि पुरानी स्पीसीज मंकी का बिल्कुल नई स्पीसीज से, ये जो नई स्पीसीज है ये बिल्कुल पुरानी स्पीसीज से मिलती जुलती रहती है, ठीक है। जब नई स्पीसीज पुरानी स्पीसीज से मिलती रहती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। जब तक मंकी से मंकी बनता रहेगा, जब तक जो है चिंपैंजी से चिंपैंजी बनता रहेगा तब तक तो बोलेंगे स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे उसको आप समझ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। द प्रोसेस इन विच आइडेंटिकल स्पीसीज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, प्रोसेस इन विच आइडेंटिकल स्पीसीज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। और एग्जाम्पल में ये लिखेंगे, यानी मंकी से मंकी बनता रहा, मंकी से मंकी बनता रहा, कोई नई स्पीसीज न आए, पुरानी स्पीसीज की तरह से नई स्पीसीज दिखती रहे, स्पेसिएशन। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम हो स्पेसिएशन में तो पूछे, ठीक है। ये मोर कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाएगा जब चैप्टर 7 रहता, चैप्टर 7 है नहीं तो आप स्पेसिएशन बिल्कुल एकदम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब होगा क्या कि मंकी से मंकी बना, मंकी से एक दिन चिंपैंजी बना। ऐसा नहीं है कि उस जनरेशन में जब चिंपैंजी बना था तो मंकी नहीं हुआ होगा, मंकी हुआ होगा। चिंपैंजी को ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, जैसे मंकी को ज़रूरत पड़ गई होगी भाई थोड़ा सा दिमाग लगाने की, थोड़ा ज़मीन पे उतर के चलने की, दो पैरों से सीधा खड़ा होकर अपने आने वाले जो एनिमीज है उसको देखने की, तो चिंपैंजी बना। चिंपैंजी से चिंपैंजी कुछ हद तक बनता रहा, ऐसा नहीं कि अचानक से रविवार को जो है मंकी था तो सोमवार को जो है चिंपैंजी, ऐसा नहीं, बहुत लंबा समय लगा। फिर चिंपैंजी के बाद चिंपैंजी से चिंपैंजी कभी बना होगा, चिंपैंजी के बाद एक जनरेशन में क्या बन गया, ऐप बन गया होगा, ठीक है। अब ऐप से किसी दिन ऐप बनता रहा, फिर एक दिन क्या हो गया, ऐप से एंशिएंट मैन बन गया, एंशिएंट मैन से एक दिन मॉडर्न मैन बन गया, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि एक लंबे प्रोसेस के बाद, मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं कि इमीडिएट होने वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं, एक लंबे प्रोसेस के बाद हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि ये सीरीज पकड़ते हुए जब वापस जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा रूट मंकी पे ही ख़त्म होता है। ये मॉडर्न मैन जो यू मी हो, ये क्या हो, ये यू हो सकते हो या मैं खुद हो सकता हूँ। तो ये रूट जहाँ से हमारा शुरू हुआ, पता चला कि मोस्टली हमारा जो क्लोज रिलेटिव है वो क्या है, मंकी है। लेकिन अचानक से संडे मंडे वाली कहानी छोड़ दें तो अचानक से हम क्या मिला कि अचानक से होने वाला हमको प्रोसेस नहीं है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, ठीक है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हमको मंकी से इंसान देखने को मिला। और यही लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इवोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल प्रोसेस, evolution may be defined as the gradual process of evolution may be defined as the gradual process of formation of very complex organisms, formation of very complex organisms from very simple one, from very simple one. It means it was believed that the organisms that appear first on earth are having very simple in nature. जो ऑर्गेनिजम्स धरती पे सबसे पहले आए वो बहुत सिंपल थे, उनकी बॉडी डिजाइन सिंपल थी, उनकी फिनोटिपिक कैरेक्टर सिंपल थे, ठीक है। तो वो सिंपल नेचर के होने के नाते ही उनमें जो है उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, यानी हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। इस वजह से हमारी बॉडी डिजाइन देखने में तो लगती है जैसे सिंपल लगती है, मंकी का कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हमारा इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बाद में आने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये इवोल्यूशन में दो चीज़ें आपको फोकस करना है, ठीक है। इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये आपको फोकस करना है कि ये अचानक से इमीडिएट होने वाला प्रोसेस नहीं है। और दूसरा क्या है, इसमें सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स सिंपल ऑर्गेनिजम से बनते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, मंकी टू मैन, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। आई होप स्पेसिएशन समझ में आ गया आपको, इवोल्यूशन समझ में आ गया, हेरिडिटी समझ में आ गया, इनहेरिटेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं जीन, ठीक है। जीन क्या होता है इस पर फोकस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीन क्या होता है इस पे फोकस हम लोग करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जीन्स को मैं समझा दूं आपको। जीन्स को सबसे पहले जो जीन्स टर्म है ना, जीन्स, जीन्स का जो टर्म है उसको सबसे पहले मेंडल ने, मेंडल का पूरा नाम लिख लीजिए, सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, जीन जो टर्म है वो जीन टर्म नहीं, जीन की डिस्कवरी सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम तो सुना ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन की क्या की, डिस्कवरी की, सबसे पहले जीन की क्या की, डिस्कवरी की, ठीक है। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जीन्स और उसके प्रॉपर्टीज़ को, जीन्स और उसके फंक्शन को स्टडी किया था उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इस वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। क्यों भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, रीजन क्या है, रीजन यही है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले जीन की डिस्कवरी की थी। और जीन को क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। जीन को वो जीन नहीं बोल पाए, क्या बोले, बोले एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ अ फैक्टर बाय विच दे एबल टू फॉर्म देयर ऑफस्प्रिंग। Every living organism has a point or a factor by which the living being able to carry, able to transfer their properties to the next generation. Later, the factor term as the genes by the scientist Wilhelm Johnson in 1909. By the scientist Wilhelm Johnson in 1909।
तो अभी आप जीन हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन से पहले लिखेंगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, बट द नेम ऑफ genes that was given by Gregor John Mendel was not gene, it was as a factors, and it was defined as the factors are the any important properties, any important uh, uh, factors, that is any important way by which the living organisms able to transfer the next generation. Every organisms has a factors, every organisms according to Gregor John Mendel, every organisms has a factor by which living organisms able to transfer their traits to the next generation. Later the factor termed as the gene, later this factor termed as the gene by which by the Wilhelm Johnson in 1909. So who gave the terms gene? The Wilhelm Johnson gave the terms gene. Who discovered genes? The genes discovered by Gregor John Mendel, but the name of the genes was termed by the Wilhelm Johnson. ठीक है, ये दो बातें लिख लीजिए. इसके बाद क्या लिखना है आपको? जेनेटिक्स आगे लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शन. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जेनेटिक्स वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाए तब जाके जीन्स के बारे में और बातें बताएं हम, लगे हाथ इसी में भी क्लियर हो जाए. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology that deals with the study of genes and their role in next generation called genetics. And father of genetics, Gregor John मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स. मैंने अभी बताया फादर ऑफ जेनेटिक्स. लेकिन जो जेनेटिक्स टर्म है ना, वो पूछता है किसने दिया था. सो जेनेटिक्स टर्म दिया था विलियम बैटसन ने. ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में, विलियम बैटसन, SON. कब? 1905 में. So the term genetics was given by William Batson in 1905 and father of genetics was Gregor John Mendel. क्लियर है ना? अभी जीन्स को डिफाइन करना बाकी है. अब जीन्स को डिफाइन करेंगे. जीन्स डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ, लिखेंगे जीन्स डिफाइंड एज द पॉइंट्स इन द DNA दैट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी डिजाइन. सपोज दैट ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ये मैंने क्रोमोसोम बना दिया. ठीक है, इस क्रोमोसोम को जब आप उधेड़ेंगे तो क्या मिलेगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब आप और मैग्नीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा DNA. DNA मिला, और DNA पे हमको क्या मिलेगा? कुछ एक सेपरेट जो है सेगमेंट मिलेगा. द सेपरेट सेगमेंट ऑफ DNA और द सेगमेंट ऑफ DNA दैट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी डिजाइन कॉल्ड जीन. जीन्स आर लोकेटेड ऑन द स्पेसिफिक सेगमेंट्स. नॉट ऑल पार्ट ऑफ DNA कंसिस्ट जीन्स. जीन्स आर लोकेटेड ऑन द DNA, दिस इज द DNA, and genes are located on the specific segments on DNA. That location is known as loci. Loci is the plural word and locus is the singular word. Locus is the singular word. So locus can be defined as, अभी आपको सब मैं बता दूंगा लिखना कैसे और क्या लिखना है. ठीक है ना, पहले आप सिर्फ सुनिए मेरी बात को. क्रोमोसोम सेंटर में होता है, न्यूक्लियस का पार्ट है. क्रोमोसोम को आप उधेड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे क्रोमैटिन थ्रेड्स. क्रोमैटिन थ्रेड्स को जब आप ओपन करेंगे और मैग्नीफाई करेंगे तो उसमें आपको DNA मिलेगा, और DNA के छोटे छोटे सेगमेंट को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे. जीन क्या होता है? स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक प्लेस पे, स्पेसिफिक सेगमेंट पे DNA क्या होता है, जिसको बोलते हैं लोकाई. अब आपको लिखना कैसे, ध्यान से सुने. अब आपको सबसे पहले जीन्स का हेडिंग डालना है. ठीक है, ऊपर हेडिंग डाले ही होंगे, बैटसन वगैरह लिख लिया होगा, सब सारी चीज़ जेनेटिक्स वगैरह भी लिख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है,
अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। क्या पॉइंट्स लिखना है? पॉइंट्स लिखना है फीचर्स ऑफ जीन्स, हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ जीन्स। नोट्स अगर आप देखते रहेंगे तो आप वीडियो देखते रहेंगे तो नोट्स आसानी से बना लेंगे। लिखिए कॉपी में, जीन्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रैट्स। जीन्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रैट्स, यानी कि जो जीन्स आँख का इंफॉर्मेशन डिकोड करके रखेगा वो नाक नहीं बनाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स लिखिए कॉपी में, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द स्पेशल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द स्पेशल पार्ट ऑफ डीएनए, दिस इज द डीएनए and this is the special parts that is known as loci. So genes are located on the specific part of DNA called loci in plural और locus in singular। और आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द स्पेशल पार्ट्स ऑफ DNA, that part is known as loci. So suppose that here the genes is located, then this part is known as locus, and the suppose that there are several parts, then there will be loci. So genes are located on the specific part or specific place of DNA called as locus. क्लियर है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है थर्ड पॉइंट। ठीक है, लोकाई हो गया। ठीक है, ऊपर ये जो पॉइंट दिया हुआ था वो क्लियर हो गया, लोकाई। थर्ड क्या लिखना है? जीन्स आर, लिखो कॉपी में, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजेज वेरिएशन। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजेज वेरिएशन अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजेज वेरिएशन अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, यानी कि जीन्स जो है ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब लास्ट का पॉइंट जो 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 जीनोम्स को डिफाइन करेगा, देखो कॉपी में, टोटल सेट्स ऑफ जीन्स। टोटल सेट्स ऑफ जीन्स, टोटल सेट्स ऑफ जीन्स, टोटल सेट्स ऑफ जीन्स इन लिविंग बॉडी, total sets of genes in a living body called जीनोम। यानी कि एक किसी डीएनए में ऐसा तो है नहीं कि एक ही जीन होगा। ठीक है, ये सपोज दैट ये डीएनए है, इसके ढेर सारे सेगमेंट होंगे। ठीक है, ये जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है, जीन 4 है, तो ऐसे सेवरल जीन होते हैं। ठीक है, और उस सबको इकट्ठे बोलते हैं जीनोम। लिख लो कॉपी में, आवर बॉडी हैज़ 20,000 to 25,000 to 25,000 genomes available. Human being has 20 to 25,000 genomes are available. क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जीन्स से थे, जीनोम्स से थे। ठीक है, जेनेटिक्स से थे, इवोल्यूशन, स्पेसिएशन, सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलिलोमाप्स, ये सब सारा कंडीशन बताएंगे। तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, हेडिंग बाय हेडिंग आप लिखते रहिएगा और चीज़ें आपको टू द पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।